Hello students, I hope you all are good and fine. So welcome back to Sri GM Donda Primary School. So student, today we will start a new chapter, that is chemical effect of electric current. So in last class, in class 6 and class 7, you have learned about electric current and its effect. There you have learned about the heating effect of electric current and the magnetic effect of electric current and the symbol that are used for various electric component in electric circuit. So today we will start that what are the chemical effects of electric current. So this chapter is related to your last class that you have learned about electricity and circuit in class 6, and after that in class 7 you have learned about what are its effect. So first of all, you have to know that what are conduction and what are conductor and insulator. So conduction of electricity, how electricity can be conducted. Similar to many solids, some liquid also conduct electricity. जैसे आपको पता है कि there are metals and non-metals, that metals that conduct electricity and material that conduct electricity are called good conductor of electricity, and material which do not allow electricity to conduct through them, that are called bad conductor of electricity. So as like solid, some liquid also conduct electricity. So water conductor, substance which allow electricity to pass through them are called conductors, such as silver, gold, acidic solution, salt solution, etc. And water insulator, substance which do not allow electric current to pass through them are called insulators, such as plastic, rubber, etc. So they are conductor. Liquid also conduct electricity, and that liquid is mostly that acidic solution conduct electricity. Salt solution, because electricity need फ्री इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल, सो उनको फ्री चार्जेस चाहिए होते हैं ट्रैवल करने के लिए. तो सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट में आपको वेरियस टाइप के सॉल्ट में आपको आयंस प्रेजेंट होते हैं. सो there are ion which conduct electricity, which help electricity to pass through them. So there are liquid also which conduct electricity. So what is circuit tester? Use a circuit tester to test whether material is good electrical conductor. So circuit tester क्या है कि हम सर्किट एक बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, फिर उनके वायर को, इंड को हम ऐसे मटेरियल से अटैच करते हैं जिनसे हमें ये पता चले कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. So how to use circuit tester? So first step क्या है, set up the circuit tester as shown above. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक बैटरी लेंगे और सेल लेंगे, उनको अटैच करेंगे हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स के थ्रू. फिर उनका एक एंड जो होगा वो हम place the object between the open end of the wire और crocodile clips. So here is what ओपन एंड. तो यहाँ पे हम जो इस मटेरियल का हमें कंडक्टिविटी चेक करना है, हम उनको यहाँ पे प्लेस करेंगे. फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि वेदर इट इज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. इफ़ द बल्ब लाइट अप इट मीन्स द मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट. और अगर बल्ब ग्लो हुआ देन इट इज़ कॉल्ड दैट it conduct electricity. The brighter the bulb, the better the conductor of electricity is the मटेरियल. बट क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रिकल बल्ब के बारे में हम पढ़े लास्ट क्लासेस में, तो वो क्या होते हैं, उनको हीट होने में टाइम लगता है. उनको ग्लो करने के लिए उनकी जो कंडक्टिविटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. सो वीक के लिए हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे एलईडी बल्ब यूज़ करेंगे. सो व्हाट इज़ एलईडी एंड व्हाट आर फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? सो द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज़ लाइट एमिटिंग डायोड. सो उनको वो जो होते हैं वो बहुत ही वीक करंट में भी ग्लो करते हैं. सो इनके प्लेस पे, इलेक्ट्रिकल बल्ब के प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, एलईडी. नाउ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर. सबस्टेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर, दैट यू ऑल नो, such as silver, gold, aluminum, etc. Some substances allow electric current to pass through them but in very little amount. Therefore such substances are called bad conductor of electricity rather than being called as insulator. In fact, most of the substances allow electric current to pass through them under certain conditions. So instead of using term conductor and insulator, good conductor and bad conductor are used. So what are electrical conductor?
electrical conductor are material that allow electric current to flow through them. Example, salt water, metals such as copper, aluminum, and non-metal like graphite, a form of carbon. So here is copper, silver, aluminum and graphite which are used in pencil as a lead. Now water electrical insulator are material that do not allow electric current to flow through them. Example, plastic, wood, rubber, glass, etc. So here is plastic, wood, rubber, that are called insulator. Now liquid, how liquid conduct electricity. So liquid which contains salt dissolved in them conduct electricity. The conduction of electricity through a liquid can be tested using 2 electrodes and a bulb. But the conduction of electricity through the liquid which are poor conductor cannot be tested. But the conduction of electricity through such liquid can be tested using LED or magnetic compass needle. सो लिक्विड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट कुछ लिक्विड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर इन द सेंस दैट वो उनका जो कंडक्टिंग पावर होता है वो बहुत ही वीक होता है. तो इनके केसेस में हम क्या कर सकते हैं, उनकी टेस्टिंग करने के लिए हम LED बल्ब यूज़ कर सकते हैं और मैग्नेटिक कंपास. सो इन क्लास 7 यू हैव लर्न अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो देयर क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वेरी वीक, अगर बहुत वीक ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, देन ऑल्सो जो कंपास होते हैं उनके निडल में डिफ्लेक्शन होता है. फॉर दिस यू नीड अ कंपास निडल, एन एम्प्टी मैच बॉक्स, 2 इलेक्ट्रिकल सेल, some wire, a plastic bottle cap and the liquid which is to be tested. Keep the compass needle inside that empty tray of match box and wrap a couple of rubber band around it. Connect the wire to the battery and insert 2 wires in a liquid which is kept in the plastic bottle cap. You will observe that when the current flow through the wire, there is deflection in the compass needle. This shows that the given liquid conduct electricity. In fact, magnetic compass needle can deflect even feeble current. LED can also be used in place of compass needle. सो हमें एक सर्किट बनाना है जिसमें हम सेल से अटैच करेंगे वायर, और इन वायर को हम अटैच करेंगे एक कंपास से. कंपास से कैसे, हम एक ओपन मैच स्टिक का कार्डबोर्ड लेंगे, उसमें हम कंपास इंसर्ट करके उसको वायर के थ्रू कॉइल कर देंगे. फिर जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, फिर हम वो लिक्विड लेंगे जिनको हमें चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं. सो यहाँ पे फ्री एंड पे हम वो लिक्विड का रखेंगे जिससे ये वायर्स के 2 एंड उस लिक्विड में इमर्स्ड हो. सो फिर क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या, अगर वीक इलेक्ट्रिसिटी है तो भी ये कंपास के मिडल के बीच में क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा. और इन कंपास के जगह पे हम LED बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं. वाटर सॉल्ट dissolved in water are responsible for conduction of electricity through water. Tap water, acid solution, basic solution, etc. are good conductor of electricity. Distilled water is poor conductor of electricity because there is no salt present in distilled water. सो स्टूडेंट, क्या होता है कि सॉल्ट वाटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. विद टैप वाटर अगर हम ले, एसिडिक सोल्यूशन ले, लाइक हमारे घरों में विनेगर होता है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, कैरेट जूस है, दीज ऑल आर एसिडिक इन नेचर. और जब भी हम इन्हें यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो बट डिस्टिल वाटर की बात करें, सो व्हाट इज़ डिस्टिल वाटर? सो डिस्टिल वाटर इज़ अ प्योर वाटर. इट मीन्स देर इज़ नो सॉल्ट प्रेजेंट इन दैट वाटर. इट मीन्स इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो ये लिक्विड जो होते हैं लाइक टैप वाटर, आपके एसिडिक सोल्यूशन लाइक विनेगर, ये आपके कैरेट जूस, आपके लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये दे विल all conduct electricity. So test electrical conductivity of liquid. Now here is a activity that place the 2 aluminum plate in the liquid tested. 2 एलुमिनियम प्लेट हम कहाँ रखेंगे, जिस लिक्विड में हमें टेस्टिंग करनी है. इन द बल्ब, इफ द बल्ब लाइट अप, द क्लोज सर्किट इज फॉर्म्ड अलाउइंग करंट टू फ्लो थ्रू इट. द लिक्विड इज अ
conductor of electricity. Now some liquid are good conductor of electricity, some liquid are poor conductor of electricity. For example, tap water are good conductor of electricity, salt solution, hydrochloric acid, sodium hydroxide, etc. सो सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इसीलिए जो टैप वाटर होते हैं, हम क्या बोलते हैं कि घरों में कोई भी हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या स्विचेस हैं, उन्हें हमें वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Some liquid are poor conductor of electricity like distilled water, sugar solution, kerosene, spirit, etc. इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे जो डेली यूसेस में हम गुड्स यूज़ करते हैं उनमें प्लेटिंग होती है इलेक्ट्रोड की, इनमें किसी दूसरे मेटल की जो प्लेटिंग होती है देन दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ केमिकल प्रोसेस यूजिंग विच a metal is coated with a layer of another desired metal. So इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? जब किसी भी मेटल पे हम दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डन टू मेक द मेटल शाइनी. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डन ओवर द आर्टिकल मेड ऑफ आयरन टू मेक द आयरन शाइनी एंड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड. सो मोस्टली ये आयरन्स पे किए जाते हैं ताकि आयरन जो है वो उनका क्षरण ना हो, उनका कोरोजन ना हो, वो रस्टिंग ना हो पाए उनकी, और वो शाइनी दिखे. जैसे आपने रिम देखे होंगे, व्हील के रिम जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, उन पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है. साइकिल के हैंडल बार होते हैं, आपके बाथ के टैप्स जो होते हैं आपके घर में वो भी शाइनी होते हैं. लॉक एंड की. नाउ व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल सॉल्ट सोल्यूशन इज़ टेकन इन अ कंटेनर. इसमें क्या करते हैं, पहले हम मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन लेते हैं कंटेनर में जिनकी हमें प्लेटिंग करानी है, जिनकी कोटिंग हमें करानी है. Salt of metal is chosen which is to be coated over another metal. So metal which is to be coated is dipped in the solution and connected with negative pole. So जिनका हमें कोटिंग कराना है इट विल कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल. मेटल फॉर डिज़ायर्ड कोटिंग इज़ कनेक्टेड विथ पॉजिटिव पोल, और जिनसे हमें कोटिंग करानी है दैट विल एडेड ऑन पॉजिटिव पोल ऑन एनोड. When electric current is passed through the solution, metal from the anode is dissolved into salt solution and deposited over the negative pole, cathode. So जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो दैट मेटल विल, जब करंट पास हो गया तो वो मेटल क्या होंगे, एनोड में डिजॉल्व होकर सॉल्ट सोल्यूशन वो कहाँ डिपॉजिट होंगे, कैथोड, नेगेटिव पोल पे जाके डिपॉजिट होंगे. दस कोटिंग ऑफ डिज़ायर्ड मेटल इज ऑब्टेन ऑन अनदर मेटल. सो जिनकी कोटिंग हमें करानी है उनकी कोटिंग के लिए डिपोजिशन हो जाता है कैथोड पे. नाउ हियर इज़ अ पिक्चर जिनमें आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अच्छे से समझ सकते हैं. नाउ यू कैन सी हियर इज़ अ copper sulfate solution and this is copper strip and it is metallic spoon is connected through a key through a battery. फिर क्या, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होंगे तो ये कॉपर जो है वहाँ से ये डिसोशिएट होंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और ये कॉपर आयंस जो है वो यहाँ पे आके डिपोजिट हो जाएंगे. नाउ दिस इज़ पिक्चर ऑफ AgNO3. AgNO3 मीन्स सिल्वर नाइट्रेट. हमें यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग करानी है ऑन दिस स्पून. सो दिस इलेक्ट्रोड व्हेन डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इट विल डिसोशिएट इनटू सिल्वर एंड नाइट्रेट. सो फिर ये सिल्वर आयन कहाँ डिपॉजिट होंगे, कैथोड पे ऑन स्टील स्पून. सो यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी. नाउ यहाँ पे क्या है, गोल्ड एनोड है एंड हियर इज़ अ कैथोड. फिर वी विल डू इलेक्ट्रोलिसिस विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. यहाँ पे करंट पास करेंगे तो ये गोल्ड के जो आयंस हैं वो अलग हो जाएंगे और ये कहाँ आ जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन दिस ग्लास फ्रेम. ओके स्टूडेंट, नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. वेयर वी यूज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वाटर पाइप्स which are made up of iron are coated with zinc of layer metal by the process of electroplating. वाटर के जो पाइप होते हैं उनकी प्लेटिंग की जाती है जिंक के थ्रू, जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, वाटर से कम रिएक्टिव करते हैं, और जिससे आयरन जो है वो ख़राब ना हो पाए लॉन्ग टाइम तक ये एज इट इज़ रहे. Rim of wheel of cycle, car, etc. are electroplated with chromium metal.
सो साइकिल के जो हैंडल्स होते हैं, कार टायर्स के जो रिम होते हैं, उनमें क्रोमियम की लेयर की जाती, कोटिंग की जाती है, जिससे वो शाइनी भी दिखे और आयरन जो है वो ख़राब भी ना हो। Ornaments made of silver or other cheap metals are electroplated with gold to give them appearance like gold। बहुत सारे ज्वेलरीज मिलते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सपेंसिव। सो बहुत सारे ज्वेलरीज होते हैं जो दूसरे मेटल के बनाए जाते हैं और उन पर कोटिंग की जाती है सिल्वर एंड गोल्ड की, ताकि वो अपीयर हो किसकी तरह, गोल्ड एंड सिल्वर की तरह। टिन कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड अप ऑफ आयरन प्लेटिंग विच with a coat of tin. Tin is less reactive than iron and prevent food packaged in them for getting spoiled। और जो आपके ब्रिजेस होते हैं उन पे किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है। ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उनमें भी जिंक की कोटिंग की जाती है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड यू हैव टू गो थ्रू द गिवन लिंक इन your PDF for detailed understanding। So student, thank you, stay connected, stay safe।